अभी जब मैं बाहर आ रही थी तो एक रंगोली बनी हुई थी कि जो बता रही है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से सुंदर बनाएं, कैसे उन्हें शेप दें। उस शेप देने के लिए हमें गौतम बुद्धा की तरफ मुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है वो अमृत तत्व दिया है जीवन का, जिस अमृत तत्व की खोज करने के लिए बड़े बड़े सन्यासी विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। ये अमृत तत्व क्या है? ये अमृत तत्व है मैत्री का। ये अमृत तत्व है अपने अहम को, अपने ईगो को तिरोहित करने का। क्या सिग्निफिकेंस है आज के संदर्भ? जब हम थोड़ा सा भी पीछे के इतिहास पर नजर डालें तब हम ये देख रहे हैं मात्र पिछले 15-20 सालों का कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन बहुत हो रही है और लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते कि इससे क्या हमारा कोई चरित्र निर्मित हो रहा है, क्या हमारा कोई समाज निर्मित हो रहा है। उन्हें न समाज की चिंता है, न चरित्र, न अपने राष्ट्र की और न ही अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लोगों। वो केवल ये सोचते हैं कि जब थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक अपने स्वार्थों को पूर्ण कर लिया जाए। जबकि गौतम बुद्ध कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हमें स्वार्थी बनना है या हमें दूसरों के हितों के विषय में कुछ सोचना ही नहीं है या दूसरों का कल्याण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। गौतम बुद्ध जब पहली बार उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित होकर अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न पूछे तो उनके पिता ने, इस बात आप सब लोग जानते हैं, कि उन्हें एक प्रकार से घर में ही नज़रबंद कर दिया था कि ना दुनिया की इस तरह की कुरूपता देखेंगे और ना ही कुछ पूछेंगे। लेकिन जो मन में विचार हैं, जो मन में एक भाव आया और वो भाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि किसी भी प्रकार की सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए उन्हें क्षण भी नहीं लगा और उन्होंने अपना घर, परिवार, वस्त्राभूषण, राज, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वर की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए अपने आप तपस्या करने। When for 6 years he was away from home and he was trying to meditate and try to realize or he was trying to find the solutions to certain problems like suffering all around, and then he was not satisfied. So his 2 friends deserted him and then he was left alone. But after 6 years, suddenly he realized something. And then he decided, then he was in a fix whether to share this idea with others or not. And the reason was that
his teaching on his realization, he found his realization so difficult that he did not want to share with anybody. Nobody could understand. Then he said that no, I must say, because I have realized what I wanted or what was I looking for. And then said, okay, let me share with him. And then anyway, he shared with 5 disciples, and then he has started his journey. He called his teaching Patisotagami, and that I called in the Pali Sutta. And that changed my way of thinking about Buddhism. After almost, you can say, 38 or 37 years, then I realized after studying Buddhism so much, writing about Buddhism so much. And then he said that myself and my teaching both are Patisotagami. Pati means going against, Sot means correct. It's a very simple example. Philosophy is very simple, I am telling you. Very simple. So simple that you neglect your experiences. Lots of things are happening around you. Lots of things are happening. There are very few things which you notice and you are struck by them. And when you are struck by an experience, something, then you stop and then you start reflecting. Why did you suppose the son and father or son and mother or 2 friends for 20 years, suddenly you realize that my friend cheated me despite all this trust and good friendship. If a robber robs you, you are not so shocked. You are paid that you are deprived of money. But you are not so paid. But if your friend sometimes cheats you, and you had so much trust in him or her, that's really very good. Somehow it was like, but it's anyway, very simple thing. Very simple. Lots of things, it requires lots of time, but I don't want to say everything is not possible. And then Buddha said that, let me give you that example. The example is that if you have seen the river flows in one direction, and there is a boatman sitting in the boat, and he is going along the current. You don't have to work very much. You don't have to sail the boat, paddle the boat, or anything. So I have seen, because my village is on the river, bank of the river, very big river. And then there, he does not have to make much effort. So it's very comfortable, playing cards or something. You can say, listen to music and cooking, all sorts of things they do. But suppose you have to go in the opposite direction. In the opposite direction, then you can't afford. You have to sail the boat because you have to face the current. Now you have faced the current and you have to go, so you can't afford. And suppose the current is very sharp. Suppose it is Rishikesh, where there is a waterfall very sharp. Only certain, you can say, crazy people who are adventurous, 5 or 6 people sail the boat against the current, which is very sharp, and everybody is just struggling, doing the balance, and then you find that no one can afford to be lazy, because in that case one will be drowned. So this way, you find Buddha said that I am just like that. I am going against the current. The sharper the current, the more dangerous one faces. Then says, what is that? Let me give this example in another way. What is that which is the most difficult? And then you find that it's so easy. Every day you practice, it's very much with you, it is very much within your ability and thinking. It's very much possible. Let me give you another example. That this word changed my life, Patisotagami, my writing. And you know a parable of arrow, that someone is passing through a jungle
and a prince is praying an animal like deer, and the arrow misses the deer and it hits the passerby, somebody in the chest. It's naturally that someone will fall down and will be in pain. It happens on the Delhi roads or elsewhere also. There are some victims and people don't come forward to help the victim. But in that case, so many people assembled there to help him. When the doctor came, and then the first crisis is overcome. It is overcome. That nobody comes forward to help the victim. But in this case, people come forward. And then everybody tries to help him. What is the most immediate concern? To provide the first aid. To provide the first aid. But there is a greater hurdle there. That man who is lying on the ground, he is in pain, and he is looking at the arrow, and then asks everybody, don't touch this arrow. Nobody will remove this arrow from my chest. First let me know who has struck this arrow, what is the price of the arrow, what is the caste or gotra of that person who has struck that arrow, what is the stuff out of which it is made, and all these questions. Then Buddha says, oh, it's very sad. The person who is suffering, he or she does not know his or her own welfare. How to address one's own suffering. This is Buddhism. Nothing else. Nothing else I am telling. He finds that his mind is enslaved by all sorts of irrelevant ideas, irrelevant things about Gotra, about God, about the cosmological questions, all sorts of things. Then Buddha said that nobody can save that person, even the world tries to save him. Then Buddha said, he does not know, he is ignorant of his own how to address the issue of suffering. All other questions are irrelevant. Okay. The significance of Buddhism in today's world. I don't know why we keep on talking about today's world. शायद इसलिए है कि क्योंकि हम लोग आज के दुनिया में जी रहे हैं इसलिए लोग तो तभी थे जब बुद्ध थे समस्या तब भी वही था रोटी कपड़ा मकान दुख तकलीफ तब भी था तो आज भी है ये जो मोक्ष है निर्वाण है सम्यकता है सब कुछ इज नॉट डिफिकल्ट पहली बात तो ये है कि जब भी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग ये मत समझना क्योंकि हम लोग जैसे ही फिलॉसफी बोलते हैं तो वी मेक और माइंड समथिंग प्रिपेयर करते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात है फोर नंबर ट्रुथ के बारे में देखिए बुद्ध ने वही बात कहा है उसको आगे बढ़ा चढ़ा के बात करने की फिलोसफर ने ऐसे एक्सप्लेनेशन किया है डोंट गो विद दैट जब एज आएगा जब आपको मतलब जब लगता है कि वो बेसिक चीज ही बात है दुख मींस एनी काइंड ऑफ दुख एयरप्लेन में आप जिसको सफर नहीं किया होगा यू आर एक्साइटेड व्हाट सीट पर बैठे और सीट पर बैठने के बाद जर्नी स्टार्ट हो गया यू स्टार्ट एंजॉयिंग आफ्टर 2 और 3 घंटे के बाद कहते हैं कहाँ फंस के नीचे देखेंगे नीला ऊपर नीला है कहीं फंस तो लॉट ऑफ कॉमन अटेंशन कम स्टार्टेड वही जो सुख था वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है सो देयरफॉर व्हाट टू डू या तो हम हमेशा हमारा थिंकिंग प्रोसेस में क्या I was talking about the समाधि को लेके जब होल्डिंग मिलने वाला या तो हम लोग जैसे आप सोचने की कोशिश कीजिए आपका माइंड या तो पास्ट में जाए फटाक से वो उस समय ऐसा हुआ था ऐसा हुआ या फ्यूचर में भागेगा ओ आई विल डू दिस थिंग नाउ ऐसा हो जाएगा उससे ऐसा कहा था अच्छा ही सेड दिस थिंग ना कि टुमारो इफ आई मीट आर मिले तो मैं उससे बात करूंगा फ्यूचर में जाता है तो व्हाट वी आर लूजिंग द प्रेशियस मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट So Buddhism speaks about living the present. Try to be in the present. Don't crush your sentiments.
मेरे ने कहा था कि एंजॉय करना, इस एंजॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ये नहीं रखते हैं अपना एंजॉय इन द नेम ऑफ पेरेंट्स फैमिली, अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं, किसी और की गलती नहीं है, दैट इज योर मिस्टेक। ये मत कहना कि बाकी बच्चों को तुम्हारे वजह से नहीं कैसे कहता, इसलिए आप यू आर टेकिंग लाइफ। ये आपने हम कहते हैं अक्सर फॉर योर सेक आई डिड दिस थिंग, बाल बच्चों के लिए कर रहा हूँ। नो, कम से इतना ऑनेस्ट तो हमें बनना होगा। हम कर रहे हैं कि बिकॉज वी फील एंजॉयिंग दैट डूइंग। हमारे यहाँ एक कहावत होता है, आई डोंट नो हाउ टू साइंटिफिकली, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। बोलते कुत्ता हड्डी खाता है तो गले में फंस जाता है तो उससे खून निकलता है, वो समझता है कि वो खून का टेस्ट हड्डी में से आता है। We are also treating this company, you will give a pleasure and enjoyment, whereas indirectly हमको प्रॉब्लम देता जा रहा है। So therefore, Namki, this is something Namki which I am talking about। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, तो इंडिविजुअल के बारे में जो बात करने की, जब तक हमसे माइंड बॉडी का कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को समझना होगा। बहुत से लोगों को, खासकर हमारे एज में बहुत सारे यंग लोगों को भी होगा, दे आर हैविंग काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर नाम का एक चीज है, आजकल का कॉमन है। व्हाई इट इज हैपनिंग? ब्लड प्रेशर को हार्ट से तो वो करता है, और उससे जो है माइंड के क्या कनेक्शन होता है? व्हाई इट हैपनिंग? क्योंकि देखिए भाई, जब भी आप किसी चीज को सोचते हैं, अगेन सोचते हैं, आप पास में प्रेजेंट है। वाई डॉक्टर, आजकल तो डॉक्टर बोलने लगे थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मोर साइंटिफिक, then the meditation become more restricted to the religious और spirituality को लेकर रखा है। इसलिए डॉक्टर आपका ही लोग बोल रहे हैं जरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया करो। What does mean this? इसका मतलब है ब्रीदिंग करने का मतलब तो सीधी बात है कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन देना है, यही तो बात है। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होता है? तो ब्लड को चाहिए, ब्लड क्या बोलते हैं, जो सेल्स है उनको चाहिए। तो उससे माइंड से क्या फर्क पड़ा? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि माइंड का जो ब्रेन सिस्टम से जो माइंड में जाता है, वहाँ जो ब्लड स्पाइक होता है, वो जो जब ज़्यादा सोचने लगते हैं पास या प्रेजेंट जाके, इट बिकम मोर सेंसिटिव, इट डिमांड्स मोर ऑक्सीजन। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की बात करता है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकल होता है? हार्ट पर कनेक्ट होता है। इट डिसाइड टू वर्क फास्टर और मोर आउट ऑफ इस कैपेसिटी करता है, जाएगा पास। अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो इतना स्टेबलाइज रहेगा। If you go to the past, और पीछे ऐसा हुआ तो उसने ऐसा कहा, अगर फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि which is yet to come, past which is gone, उससे बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है उसको ठीक करने का। Whatever happened, you keep it aside। दुनिया इतना पैथेटिक और इतना क्रूअल नहीं है जितना हमने बना रखा है, सोच रखा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जापान में जितनी चीजें हुई थी, जो एनीबडी डेयर, आज के ज़माने में कितना न्यूक्लियर कंट्री है कि किसी को हिम्मत कर सकता है किसी एक दूसरे पर देश पर तो है बम फेंके, वो जानते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वहाँ फेंका तो यहाँ फेंकेंगे, तो नेचुरल बात है कि डेथ इज ओवर, ह्यूमैनिटी, इंसान, मनुष्य ही मरेंगे उसमें। सो दे नो दे आर वेरी कॉन्शियस, वो प्रबुद्ध हैं पहले से ज़्यादा। ये कॉलेजेस कहाँ थे जहाँ पर पढ़ने के लिए इतना मौका मिला? उस समय सिलेक्टेड होकर गुरुकुल होता था, वो भी जाते थे। कितने लोगों को ये अवेलेबल था? यही नहीं है, वी हैव मेड श्योर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कि एससी एसटी लोग भी हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अब नहीं होता था हम कहाँ होते यहाँ पर? हम तो अभी तो जंगलों में यहाँ भेड़ बकरी चढ़ा रहे होते, बांसुरी लेके गाना गा रहे होते, और क्या होता? लेकिन जिंदगी फिर भी चलता। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेटर लाइफ। बेटर लाइफ का मतलब ताकि बेटर से बेटर होता जाए, प्रबुद्ध हो जाए, अपने बारे में जाने, समझे, सोसाइटी के बारे में सोचे। क्योंकि सोसाइटी है तो सोसाइटी इज गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग। दिस चेंज नीड टू बी एक्सेप्टेड। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किसी भी एक फील्ड में, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे पर्सनल हो, कहीं भी हो। एक दोस्त आपका है, जैसे दोस्ती का वो उससे हुआ, हम ही के टाइम नहीं हुआ, चेंज है, यू शुड एक्सेप्ट इट। तो कम होगा, पहले से तैयार होना चाहिए, तो यू लेस फील लेस।
Let's think. So how to do that? ये जो आपका राग विष्णु है, इसे understand that. Are I understanding it? We have to develop a kind of a sense that things are dependently originated हैं, एक दूसरे का related है. So therefore, how we can make this world more livable. So therefore, you do it like that. I won't speak much. काफी टाइम हो गया है. So हमारे लिए unstructured जो हमारे जो आपका था, कितना समझ आया नहीं, I don't know. मैं ये मान के चला था कि कुछ बातें आपको समझ आए. This is very good. कोई नया बात हमने कहा नहीं, कहने का गुंजाइश नहीं थी. So thank you so much for this. Alright. And listening to us. Thank you so much once again for everybody. Thank you so much. And also thanks to the Professor Prasad ji, who has enlightened us in Kevasa ji. It has refreshed my memories. Thank you so much. Thank you, Professor Negi, for your such informative and inspiring talk.